Very good morning, students. This is your Sachin sir. I am here again with a new topic regarding the conventions. I have made videos regarding the concepts, but I haven't completed the conventions part. So today we will complete the conventions part. I have also heard the reviews and responses regarding that. I haven't made any video regarding the conventions because the videos was titled as Concepts and Conventions of Accounting. So it was a bit too long. I couldn't cover the conventions. So here today we'll talk about the conventions of accounting. With a short revision, I would like to tell you that concepts and conventions are at par or go parallelly. That means concepts or conventions are nothing like that different. There is no difference between those two things. Concepts means the rules and regulations that you follow for recording the business transactions of the business. Same goes with the conventions too. Okay, so conventions also lay down certain guidelines, policies or rules that is useful for recording the business transaction in different book of accounts. So as you know that concepts and conventions are no way different. Just the term is used separately. Okay, so without wasting any time, we should discuss the conventions of accounting. So the first and the most important conventions of accounting is convention of conservatism. Convention of conservatism. Okay, you must be knowing the term conserve. To conserve, what is conservative? We used to say that the person is conservative minded. You also watch the news regarding the conservation of energy to save electricity. So what does conservation means? What is conservative minded people? Okay, so conserve means to save or to take precaution to avoid wastages. Simple. The thing is that because conservation is टू सेव फॉर द फ्यूचर. अब कंजर्वेशन का मतलब ये होता है ना कि आप आगे के लिए कुछ बचा के रखो, सेव करो. अब हम यही बोलते हैं ना कि अगर आप आज एनर्जी कंजर्व करोगे तो आगे जाके आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए फायदेमंद होगा, वरना उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं. अब बोलते हैं कि ये थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडेड है. तो कंजर्वेटिव यहाँ पे दो चीजों पे आती है. कोई ट्रेडिशनल होता है, कोई ऑर्थोडॉक्स होता है, कोई एक रूड मेंटालिटी का ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का होता है जो कि पुराने ख्यालों को मानता है, तो उसको भी हम कंजर्वेटिव बोलते हैं. पर एक्चुअली कंजर्वेटिव और कंजर्व मतलब कुछ बचा के रखना फ्यूचर के पर्पजेस के लिए. अगर आपको आज पॉकेट मनी मिलता है 20 रुपए और आपका टोटल खर्चा हो जाता है 15 रुपए, तो आप क्या वेस्ट करोगे 5 रुपीज? नो. आप क्या करते हो, उस 5 रुपए को अगले दिन के पॉकेट मनी में या तो ऐड कर देते हो या फिर किसी और चीज में उसको खर्च करते हो जो कि ज्यादा जरूरी है, या फिर बचा के रखते हो. सो दैट्स व्हाट कंजर्वेटिव और कंजर्वेशन मीन्स. तो उसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कंजर्वेटिज्म का मतलब कुछ ऐसा ही है. सो द टर्म कंजर्वेटिज्म स्पीक्स अबाउट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. एज यू नो दैट द बिजनेस एंटरप्राइज इज सराउंडेड बाय वेरियस अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, and there are a lot of uncertainties that we cannot predict now also. It is very difficult to predict all sort of uncertainties that may take place in future. That is totally unpredictable. But if a businessman is experienced, अगर वो एक एक्सपीरियंस जानकार होता है तो वो एक दूर दृष्टि रखने की कोशिश करता है या फिर रखता भी है. पर क्या कोई एस्ट्रोलॉजर है ये वो जान जाएगा कि आगे क्या होने वाला है? नहीं. तो कुछ ना कुछ हमको फ्यूचर के लिए बचा के रखना पड़ता है. ठीक है, जो कि हमने कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिसीट में भी बात की थी कि कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हमें बचा के रखना चाहिए आगे के काम के लिए. ठीक है, दैट इज व्हाट द कंजर्वेटिज्म स्पीक्स अबाउट. तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है? इट सेज, ध्यान से सुनना, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का एक कोटेशन है जिसमें वो बोलता है there should not be any anticipation of profit but probable losses should be provided for. फिर से क्या बोला? There should not be any anticipation of profit but probable losses should be provided for. इसका कहने का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको मुनाफा होगा ये सोच के मत चलो. आप ये सोच के चलो कि आगे जाके आपको नुकसान ही होंगे. ठीक है, ऐसे ही आपको सोच के चलना है कि मुनाफा नहीं हो सकता, नुकसान होगा. अब फायदा क्या है ऐसा सोचने का? हमें तो हमेशा बोला जाता है कि बी पॉजिटिव सोचो, अच्छा होगा, हैव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, डोंट बी पेसिमिस्टिक कैरेक्टर, ऐसा बोला जाता है ना. थिंग इज
in business, as I told now, there are a lot of uncertainties that are revolving around your business. That may be competitors, that may be government policies that you don't know regarding the industrial laws, pollution laws. There are a lot of uncontrollable factors surrounding your business environment. Okay, so if you do not make any savings or reserve for your future, you cannot meet the business requirements. अब इस रिक्वायरमेंट को आप कुछ भी बोल सकते हो, खर्चे बोल सकते हो, लायबिलिटी बोल सकते हो. एक बिजनेस चल रहा है मतलब उधार में भी चलता होगा, क्रेडिट भी होता होगा, लायबिलिटी भी होती होगी, खर्चे भी अनवांटेड भी होते होंगे, जिसको आप मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस का नाम दे देते हो. तो उन सब के लिए भी तो कभी ना कभी कुछ बचा के रखना पड़ेगा कि नहीं. तो उसी चीज को बताता है कंजर्वेटिज्म. सो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म सेज do not expect to profit in your future years. Do not expect profit in your future years. Think that there will be losses. Think that there will be more losses or uncertainties, and prepare in such a way that you can face those uncertainties or face those losses in your future, having proper liquidity in your business enterprise. अब liquidity की बात तो आपको पता ही होगा, मैंने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया था. लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब बिजनेस का एक ऐसा स्थिति, ऐसी सिचुएशन जबकि आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी हर वक्त होनी चाहिए. अगर कैश की अवेलेबिलिटी हुई, दैट मींस यू आर इन ए लिक्विड फॉर्म, यू आर इन ए लिक्विडिटी पोजीशन. तो इसका मतलब होता है कि अगर आपका बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा है तो आप कोई भी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हो. दैट इज व्हाट ओके लिक्विडिटी मींस. तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म सिर्फ इतना ही बोलता है, वेरी सिंपल इट इज, बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. टर्म लग रहा होगा कि बहुत की हाइपोथेटिकल है, ऐसा है, कुछ नहीं है. ओके, वेरी इजी. इसने इतना ही बोला कि देयर शुड नॉट बी एनी एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब नो डिटर्मिनेशन, नो कैलकुलेशन और नो एसेटेनमेंट. देयर शुड नॉट बी एनी एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, बट प्रोबेबल लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर. लॉस होने की आशंका रखो, प्रॉफिट होने की आशंका ना रखो. अगर आप एक सिंपल सी बात लो, अगर आप ये सोच के चलते हो कि आपको नुकसान होगा, लॉस होगा, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, और सोच लो कि आगे के सालों में अपना बिजनेस तरक्की कर जाए और इट हैज मोर एंड मोर प्रॉफिट, यू आर इन द बूम पोजीशन इन द मार्केट, योर कॉम्पिटिटर्स आर फ्लैट अराउंड योर बिजनेस, सो वो कैसा लगेगा आपको? तो वो प्रॉफिट आपके लिए एक क्रीम, बटर के ऊपर क्रीम जैसा हो जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? ओके, सो दैट इज व्हाट द थिंग इज. So convention of conservatism clearly says that make proper reserve for the future, so that business will be in the coming future in a liquid state, so that it can meet the requirements. So consider there will be losses in the short run, okay, and go for savings, so that without expectation of profit you can meet the business requirements in your future. And if you get more and more profit in the future, that is very good, that your business is growing good, but you have to always keep in mind the convention of conservatism. समझ में आया? अगले कन्वेंशन की ओर बढ़ते हैं हम. अगला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी. कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी. अब देखो, मेटेरियलिटी का मतलब वो तो नहीं है जो आप मेटेरियल का मतलब सोचते हो. मेटेरियल का मतलब क्या होता है? कोई धातु, पदार्थ, यही है ना मेटेरियल का मतलब. बट यहाँ पे मेटेरियलिटी का मतलब वो नहीं होता है. यहाँ पे मेटेरियल का मतलब होता है रेलेवेंट, रिक्वायर्ड, आपको जरूरत है कि नहीं, ये सही है कि नहीं. अब आपको ऐसे बोलते हैं ना, दैट थिंग इज इमैटेरियल, डोंट कंसीडर दैट, डोंट फोकस ऑन दोस थिंग्स, इट इज वेरी मटेरियल, दैट इज मटेरियल. सो व्हाट कम्स हियर? मटेरियल मींस एनीथिंग दैट इज रेलेवेंट. मटेरियल मींस दैट इज रिक्वायर्ड और इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाट द टर्म मटेरियलिटी मींस अंडर द कन्वेंशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ओके, सो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बताता है? मटेरियलिटी कन्वेंशन बोलता है फोकस और गिव स्ट्रेस to those business transactions or those areas of business that can help you earning more and more revenues in the business organization. कहने का मतलब है कि मेटेरियलिटी कन्वेंशन आपको ये बोलता है कि आप बिजनेस के उन एरियाज पे ध्यान दो तरक्की, जिसमें तरक्की आसानी से हो सकती है, या फिर उन ट्रांजेक्शंस पे आप ध्यान दो जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को कमिंग फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं. अब यही तो उद्देश्य है ना. मेटेरियलिटी का मतलब ये नहीं कि आप इररिलेवेंट को ही फोकस करो या फिर नॉन मॉनिटरी को फोकस करो. नो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ने हमको पहले ही बता चुका है क्या, कि हम इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे. दैट मींस ट्रांजेक्शंस हैविंग मॉनिटरी वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट. तो वो हो गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ये मेटेरियलिटी कन्वेंशन थोड़ा उससे सुप्रीम है. मतलब ये यही बोलता है कि बिजनेस में आप उन एरियाज ऑफ ऑपरेशन या उन ट्रांजैक्शंस को कंसंट्रेट करो या फोकस करो जो आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी,
लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे। दैट मीन्स सी you are paying more and more salary to the more employees. You have the work that can be completed with 4 employees and you are having 10 employees in your organization simply. So आप आइडल पेमेंट कर रहे हो ना सैलरी, तो आप ट्राई करो कि सैलरी कट कर सको और मैन पावर कट कर सको, तो आपका रेवेन्यू बढ़ा कि नहीं, हो गया, ये रेलेवेंट हो गया। वैसे ही आजकल ऑटोमेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीनरीज आ रहे हैं जिसमें मैन पावर की इतनी जरूरत नहीं है, तो क्यों हम वर्कर्स को रख के ज्यादा से ज्यादा वेजेस देंगे। अब कमर्शियल और बिजनेस होंगे तो ऐसा तो सोचना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे कि एडवांस मशीनरीज बिजनेस में रखेंगे और मैन पावर को घटाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा वेजेस बच जाएगा, बस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगेंगे मशीन के ऊपर जो कि पहले भी लगते थे, है कि नहीं। तो ये जो ऐसे जो एरियाज हैं ये क्या होते हैं जो हमारे खर्चे को घटाते हैं। अब देखो प्रॉफिट को आप दो तरीके से बढ़ा सकते हो, कैसे, इंक्रीज द रेवेन्यू, इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। अब इन दोनों में से आसानी कौन सी होती है, क्या आप सेलिंग प्राइस अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो प्रॉफिट की वजह से, नहीं, आपके मार्केट में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे ना, अपना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलता है। सो इन दैट केस द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज एंड द स्ट्रेटेजीज कैन नॉट बाइंड यू टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, तो आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करने की कोशिश कर सकते हो, कॉस्ट कटिंग की कोशिश कर सकते हो। दैट मीन्स कि प्रोडक्शन में वेस्टेज आता है उसको कंट्रोल करो, एडवांस मशीनरीज ले आओ, वेजेस कम करो, ठीक है, एम्प्लॉइज कम करो ताकि कम सैलरी देना पड़े। इस तरह से बहुत सी चीजें होती है। अगर आप कहीं से रॉ मटेरियल लाते हो, बहुत दूर से लाते हो, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो जाता है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि कोई पास से या फिर ऐसा कोई जगह हो जहां से आपको क्वालिटी मटेरियल मिले, कम प्राइस मिले, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी घट जाए। तो ये सारी चीजें होती है कॉस्ट कटिंग। मतलब अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा सको तो आपके सेलिंग प्राइस फिक्सेशन में आसानी होगी, तो आपका सेलिंग प्राइस भी घट सकता है। और सेलिंग प्राइस अगर आपका घट गया तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाओगे। तो इंक्रीज सेल्स टर्नओवर कैन गिव यू इंक्रीज रेवेन्यू और इंक्रीज प्रॉफिट। दैट इज व्हाट द एम ऑफ ए बिजनेस। तो वही बात होगी, मेटेरियल कन्वेंशन यही बोलता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस और ऐसे एरियाज को कंसंट्रेट या फोकस करो जो कि आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आसानी दे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बट देयर इज नथिंग मोर डिटेल अबाउट इट, ये इतना ही बोलता है। ये सब दिखने में हार्ड लगता है बट है नहीं, इट इज वेरी इजी। उसने बोला कि आप नुकसान सोचो, प्रॉफिट मत सोचो, सो दैट आप नुकसान के लिए तैयार रह सको। सही बात है, कंटिजेंसी तो कभी बता के नहीं आते। अब इसने क्या बोला, आप उन रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस को फोकस करो जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करे। अब हम प्रॉफिट आने की वजह से तो बिजनेस करते हैं ना, तो ऑब्वियसली वी शुड फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। सो यही बात थी मेटेरियल की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कन्वेंशन की ओर, ठीक है। अगला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये नाम से ही आप समझ जाओगे क्या है इसका मतलब, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। अब देखो फुल का मतलब तो पता है, हाफ इंटू टू, हाफ का डबल, है कि नहीं। तो फुल का मतलब टोटल। यहाँ पे अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के नजरिए से बात करें तो फुल का मतलब होता है टोटल। डिस्क्लोजर मतलब टू डिस्क्लोज, टू शो, टू प्रेजेंट, ओके, इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब हुआ, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर सेज दैट व्हाटएवर द बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस you must be recorded in the book of account, ये तो आपको पता ही है। But convention of full disclosure says record every business transaction in the book of account, but with necessary details. Each and every detail regarding the business transaction must be shown in the book of account. अब आपको रिकॉर्डिंग ने तो बोला कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो आप उसको तुरंत अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिख लो। तो फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या फिर जो भी ट्रांजैक्शन आप लिख रहे हो उसको आप पूरा डिस्क्लोज करो, पूरा डिटेल लिखो। अब डिटेल का मतलब तो आप समझते होगे। सोचो कि आज मैंने परचेज किया, तो परचेज का डिटेल क्या होगा, कौन सी डेट में किया, कितना परचेज किया, कैश किया या क्रेडिट किया, किससे परचेज किया, अगर क्रेडिट किया तो उसका नाम क्या है, डिस्काउंट मिला है या नहीं, तो ग्रॉस अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट कितना है, ठीक है। ये सब डिटेल्स होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। सो फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन सिंपली सेज दैट व्हाटएवर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड विद नेसेसरी डिटेल्स सो दैट इट विल बी मोर हेल्पफुल टू users of accounting information, that may be the internal users or the external
interpret, analyze, or judge the data or the information of the business that whether the business is going on a profitability trend or it is टर्निंग टुवर्ड्स इंसॉल्वेंट या फिर नुकसान होने वाला है। अगर आप बिजनेस का सारा डिटेल्स लिखोगे, प्रेजेंट करोगे अपने यूजर्स को, तो उनको इंटरप्रेट करने में आसानी होगी ना कि हमको आने वाले समय में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन की क्या वजूद रह गई है। ठीक है, यही बात होती है ना। सो दैट मीन्स फुल डिस्क्लोजर मतलब आपको हर डिटेल बिजनेस ट्रांजेक्शन का लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं, convention of full disclosure implies that every business transactions having monetary value should be recorded in the book of account, but with all necessary details. That necessary details may be regarding the name of the creditor or the name of the debtor, that may be regarding the discount allowed, cash or trade discount. Okay, the details may be regarding the date of the transaction, amount of the transaction. Okay, there are various details regarding a transaction which you must furnished or present in your book of account. That is more helpful for the taxation department, for the excise department, for other external users of accounting information who use your financial information or data of the business to interpret the profitability or financial strength of the business. समझ में आया? तो फुल डिस्क्लोजर यही होता है कि आप सारे डिटेल्स बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिखो। बढ़ते हमारे अगले कन्वेंशन की ओर। इसको आप कंसिस्टेंट, इसको आप कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। कई जगहों पे इसको कन्वेंशन का नाम दिया गया और कई जगहों पे इसको कॉन्सेप्ट बोला गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में कोई अंतर नहीं है, बस नाम का अंतर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं। कन्वेंशन आर आल्सो सेम, दैट हेल्प्स यू टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली। कैसे प्रॉपर्ली? अभी इसने बोला कि नुकसान को सोचो, प्रॉफिट के बारे में सोचो, सो दैट आप प्रिपेयर रह सकते हो। दूसरा बोला कि आप रेलेवेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन को फोकस करो। तीसरा आपको ये बोला कि हर ट्रांजेक्शन को नेसेसरी डिटेल्स में लिखो। तो हर कन्वेंशन आपको बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। सो दैट मे बी ए कॉन्सेप्ट और दैट मे बी ए कन्वेंशन। द वर्क ऑफ दिस टू आर सेम। तो हमारा अगला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या है ये? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब तो आपको पता ही होगा। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? पता है कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? एवरेज क्या होती है, पर आप एवरेज जो सोचते हो, एवरेज कंसिस्टेंट से थोड़ा अलग होता है। मैं आपको कंसिस्टेंसी का एग्जांपल लेके बताता हूं कि आपको फ्यूचर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में भी हेल्प होगा। सोचो कि आपके दो मैच हो रहे हैं। क्या हो रहा है? दो मैच। मैं तीन का एग्जांपल ले, मैच 1, मैच 2, मैच 3। मैं क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूं। ठीक है, 3 मैचेस हो रहे हैं। सोचो आप दो प्लेयर का एग्जांपल ले लो। पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा राहुल द्रविड़। क्रिकेट को आपको सबको पसंद है, आप तो क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा लोग शायद मैं उतना नहीं जानता हूं, तो आप ये एग्जांपल अच्छे से समझ पाओगे। सोचो फर्स्ट मैच में सचिन ने सेंचुरी मारा, दूसरे मैच में उसने अच्छे रन नहीं बना पाए, उसने बनाए सिर्फ 40 रन। अब तीसरे मैच में उसका परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा, तो उसने बनाया सिर्फ 35 रन। ठीक है, तो अब द्रविड़ क्या करता है? द्रविड़ पहले मैच में बनाता है 50 रन, सेकंड मैच में बनाता है 55 रन, थर्ड मैच में बनाता है 45 रन। ठीक है, क्या होता है? सचिन और द्रविड़ है जिन्होंने ऐसे रन बनाए। सचिन ने पहले मैच बनाया 100 रन, सेकंड में बनाया 40, थर्ड में बनाया 35। अब द्रविड़ के पहले 50, फिर 55, फिर 45। अब शायद इसका एवरेज ज्यादा आता हो, मुझे नहीं लगता क्या आएगा, पर अगर इसका एवरेज ज्यादा भी आया तो ये देखो कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों? पहले देखो 60 का अंतर होता है, फिर देखो 5 का डिफरेंस आ जाता है, तो इस तरह से वो कंसिस्टेंट नहीं है। पर इसे देखो, पहले 5 का डिफरेंस रहा, फिर 10 का डिफरेंस रहा, तो इसके कंपैरिजन में, मतलब सचिन तेंदुलकर के कंपैरिजन में राहुल द्रविड़ ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो हर मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके हिसाब से एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है। पर इसका क्या है? एवरेज कभी हाई होता है, कभी लो, कभी मीडियम। ठीक है, तो ये होता है कंसिस्टेंसी मतलब। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि आप हर जगह पे एक अच्छा स्कोर कर सको और एक एवरेज स्कोर जिसको आप मेंटेन कर सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कंसिस्टेंसी मींस टू मेंटेन और प्रिजर्व योर परफॉर्मेंस।
या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कंटिन्यूसली या रिकरिंगली हमें एक स्कोर या फिर एक परफॉर्मेंस बना के रखना है। तो कन्वेंशन और कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये पता है, ये सब कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन से भी ज्यादा इजी है। इसका मतलब है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स और जितने भी कन्वेंशन आपने अभी तक फॉलो किए हैं, अभी तक पढ़े हैं या फिर अभी तक सीखा है, उनको आप फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो। कभी भी बिजनेस के कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट को आप वायलेट ना करो। मतलब नेवर रिकॉर्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट इज मींस अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस ऑफ द बिजनेस और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसे वे में मत रिकॉर्ड करो जो कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के खिलाफ होता हो। ठीक है, तो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे लिखना है, उन कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को दिमाग में रखें। Always record business transactions, keeping in your mind the various concepts and conventions discussed so far or you have learned till now. So convention of consistency only speaks about that कि whatever the business transactions are recorded, record with following all the concepts and conventions, and always apply the concepts and conventions that we have learned so far in every business field for the purpose of comparison, for the purpose of calculation, for the purpose of determination, for the purpose of analysis, for the purpose of tabulation, for the purpose of interpretation, whatever may be the purposes, always follow the concepts and conventions consistently. Never violate the concepts and conventions of accounting while recording the business transaction. So, by taking a overlook towards the conventions of accounting, the first convention is the convention of conservatism, where it speaks about there should not be any anticipation of profit, but the probable losses should be provided for. दैट मीन्स यहाँ पर ये बोला गया कि आप सोचो कि आपको आगे जाके नुकसान होगा, आपको प्रॉफिट होगा, ये मत सोचो, सो दैट आप उस लॉसेस के लिए प्रिपेयर रह सको, कुछ सेव कर सको, आप अपने बिजनेस को एक बेटर लिक्विडिटी पोजीशन में फ्यूचर में रख सको, ताकि आप हर रिक्वायरमेंट, हर लायबिलिटी को मीट कर सको। ठीक है, सेकंड वाला क्या हुआ, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। अब मेटेरियलिटी बोलता है, मेटेरियल का मतलब क्या होता है, रिलेवेंस, रिक्वायर्ड। तो कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी स्पीक्स दैट you should focus or concentrate on those business transactions or those areas of scales of operation where or which helps you in strengthening the financial position of the business or helps in the increment of the profitability of the business। जो आपके बिजनेस के मुनाफे को बढ़ाने में सक्षम हो या फिर आपके सॉल्वेंसी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में सक्षम होता है, तो उन बिजनेस ट्रांजेक्शन को ज्यादा फोकस करो और ज्यादा लिखो। ठीक है, थर्ड कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है कि आप बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो इन द बुक ऑफ अकाउंट, बट रिकॉर्ड विथ ऑल नेसेसरी डिटेल्स। सारे डिटेल्स जो होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के, आप उसको रिकॉर्ड करो फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन बाय योर डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स record every business transaction with all sort of necessary details attached with those transactions for the purpose of better presentation to your users. And the last and not least, the convention of consistency. So the convention of consistency speaks that you should always follow the concepts and conventions of accounting. You should follow all the concepts and conventions of accounting regularly, continuously, frequently to avoid any mistakes in the recording of business transactions. आपको हर समय पे बिजनेस के सारे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस को रेगुलरली फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो बिजनेस के कोई भी फील्ड हो। ठीक है, कंपैरिजन हो, ट्रेंड एनालिसिस हो, प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, आपको बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को रेगुलरली फॉलो करेंगे। ठीक है, आप कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं लिखोगे या फिर ऐसे ट्रांजेक्शन को प्रेजेंट नहीं करोगे जो कि आपके बिजनेस के कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस को वायलेट करते हो या फिर उसके खिलाफ जाते हो। यू गो अगेंस्ट, never go against or violate the business concepts and conventions. Record the business transaction following those concepts and conventions to avoid silly mistakes or errors in your transactions. ठीक है, तो ये बात होगी कन्वेंशंस की। हम बहुत जल्द आगे लौटेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग दी नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप वाचिंग, एनकरेज अस, and if there is any doubt, please ask me in the comment section. If you have any suggestions too, I would love to hear it from you. So please give suggestions too. Thank you.